Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper 2nd OBA part 1st, representative Indian political thinkers, and in this video we will discuss about the political views or ideas of Shukra. So let's start. First, we talk about ministry, organization, and working. So, no king can run the state without the consultation and advice from his ministers. They are eyes and ears of the king. According to Shukra, the number of ministers are 8. Sumantra, Minister of Finance; Pandit, Mantri, Minister of Foreign Affairs; Pradhan, Chief or Prime Minister; Sachiva, Minister of Defense; Amatya, Minister of Law and Justice; and Pratinidhi. Purohit is over and above them, the most dignified one. There is one another officer called as Duta. Thus there are 10 Prakritis. He mentions 20 departments. It means some ministers had more than 2 departments. According to Shukra, the king should test behavior, merit, character, family, etc. of the candidates for higher posts. Ministers should be brave, intelligent, tolerant, religious, holy, and fearless. Role of these ministers is to render advice to the king without fear. It may be liked or not liked. They should keep the king alert. The king too should carefully listen to their advice. Administrative setup. Functions of the state are also the functions of the king and his administration. Shukra has outlined a code of conduct for the state officials. They should be loyal, skillful, efficient, honest, etc. Shukra has outlined principles of administration such as recruitment, which should follow the principle of merit and specialization. Their conduct and loyalty are foremost. Secrecy, it should be maintained at all levels. Adequate and regular salary should be paid. From time to time, officials should be granted promotion, etc. Shukra's administration of the state can be divided at 2 levels: Pur, that is capital or town; second one is countryside. Along with this, Shukra recommends collection and augmentation of treasury for the welfare of the people, maintenance of army, etc. Taxes should not be excessively increased, except during crises. Pilgrim places and temples should never be taxed. He prescribes limits on proportion of taxes on markets, land, usury, barber, etc. Shukra is very much aware about judicial system. Sources of law are Dharmshastra, usages, conventions, and commands of the sovereign, and a long list of crimes and offences is given in the Nitisar. Nitisar, that is book that is written by Shukra. So the next one is the king along with Prag Vivak, that is lawyer, Amatya, Brahman, and Purohit made public hearing of crimes and offences. There is Vichar Sabha or jury for specific cases. There is gradation of courts from lower to higher. They are decentralized in towns and countryside. Besides internal administration of the state, Shukra describes foreign policy and interstate relations. His classification of states is on the pattern of Manu and Kautilya. They are enemy, ally, average, and neutral. That is Mandal theory. Mandal theory, we will discuss about Mandal theory when we will discuss the ideas of Manu, because all the 3 ancient Indian political thinkers has described the same. For dealing with the neighboring states or otherwise, Shukra, alike Manu, recommends the application of 4 upayas, that is strategies. These are Sam, appeasement or conciliation; Dan or Dan, gift or bribery; Bhed, that is division; and Dand, that is force or punishment. These strategies have the order of preference. Shargunya is mainly the policy of peace and uh, war in 6 directions or gunas. Sandhi, that is treaty; Vigraha, that is conflict; Yan, that is attack; Ashray, that is shelter; Asan, that is neutrality; Dvaidibhav, that is twofold policy of friendship and hostility. The social system, unlike Manu, Shukra has not dealt with the organization of this social system in full details. Still, it is similar to Manu's description. The society has to operate under dharma and observe varnashram dharma, but Shukra even
while accepting birth or heredity as the basis of varna or caste, advocates karma profession as the basis which can enable him to attain a particular varna. The Brahmanas, according to him, have to pass through the four ashramas: brahmacharya, grihast, vanprasth, and sannyas. The other castes varna has to stop at vanprasth only. Sannyas is not for them. प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे शुक्र के राजनीतिक विचारों के बारे में। तो जब हम लोग शुक्र के राजनीतिक विचार करते हैं तो इसमें हम लोग आज बात करते हैं मंत्री गण के बारे में, उनका संगठन और उनकी कार्य प्रणाली। तो मंत्री की आवश्यकता राजा को इसलिए होती है क्योंकि वह उनकी सलाह और मंत्रणा के बिना कोई भी राजा किसी भी राज्य का संचालन नहीं कर सकता है, और शुक्र ने उन्हें राजा का आँख और कान कहा है। शुक्र ने नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों की संख्या 8 बताई है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो मंत्री यहाँ पर 8 होंगे। सुमंत्र, दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। पंडित, मंत्री, प्रधान, सचिव जो आपके रक्षा मंत्री होते हैं। अमात्य, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय मंत्रालय, उसको देखेंगे। और एक होते हैं प्रतिनिधि। 8 मंत्री शुक्र ने बताए हैं। इसके अलावा एक और पद की व्यवस्था शुक्र ने की है, वो है पुरोहित, जो इन सबसे ऊपर है। और इसके अलावा एक अन्य ऑफिसर हैं जो कि दूत। तो इस तरीके से ये 8 प्लस पुरोहित प्लस दूता, दैट इज़ 10। तो इन्हें शुक्र ने राजा के लिए ये प्रकृति शब्द, इनके लिए प्रकृति वर्ड का यूज़ किया है। तो इस प्रकार ये 10 प्रकृति उन्होंने बताई है। इसके अलावा उन्होंने 20 विभागों को मेंशन किया है। 20 विभाग मतलब हमारे पास में 10 मंत्री पद हैं और 20 विभाग हैं। इसका मतलब है कि कुछ जो मंत्री होते हैं वो 2 से अधिक डिपार्टमेंट को देखते हैं। इनमें से पुरोहित अलग है प्लस दूत अलग है। और शुक्र का ये विचार है कि राजा को मंत्री पद पर व्यक्ति की नियुक्ति करते समय मेरिट, कैरेक्टर, फैमिली, ये सब इनकी अच्छे तरीके से जांच कर लेनी चाहिए। और जो मंत्री होते हैं उन्हें ब्रेव, इंटेलिजेंट, टॉलरेंट, रिलीजियस, धार्मिक, पवित्र और निर्भय होना चाहिए। मंत्रियों का कार्य है राजा को बिना किसी डर के अपनी मंत्रणा देना, चाहे राजा इसे पसंद करे या ना करे। उसके साथ ही राजा को सदैव जागरूक रखना सॉरी। इसके बाद में प्रशासनिक सेटअप आ जाता है जो शुक्र ने राजा के लिए दिया है। So functions of the state are also the functions of the king and his administration, as well as all the ministers. And so we will not do here separately. I have mentioned functions of the state as well as duties and responsibility of the king that will be included in the administrative setup. इसके अलावा शुक्र ने जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं इनके पालन के लिए आचार संहिता का भी निर्धारण किया है। और प्रशासनिक अधिकारियों के गुणों में लॉयल, निपुण, प्रवीण, सक्षम, ईमानदार होने चाहिए वे। और इसके अलावा शुक्र ने प्रशासनिक व्यवस्था के सिद्धांतों जैसे नियुक्ति और गोपनीयता, प्रमोशन, इन सब के बारे में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की है। और जो नियुक्ति होती है वो मेरिट और स्पेशलाइजेशन, विशेषीकरण के सिद्धांत के आधार पर होनी चाहिए। सीक्रेसी होती है गोपनीयता की, किसी भी बात को बाहर जाहिर ना करना। जो भी प्रशासनिक गोपनीयता की बातें हैं तो उसे हर लेवल पर मेंटेन रखना चाहिए। इसके अलावा पर्याप्त और नियमित सैलरी दी जानी चाहिए। और इसके अलावा शुक्र ने जो राज्य का प्रशासन है उसे 2 भागों में विभाजित किया है। पहला आ जाता है पुरी या राजधानी या जो टाउन्स होते हैं वे। दूसरा आ जाता है कंट्री साइड, दैट्स मीन अगर हम लोग टाउन्स को छोड़ के बाकी जितना एरिया एक कंट्री का या स्टेट का होता है दैट इज़ कंट्री साइड। राजा को कोष की अभिवृद्धि के लिए हमेशा निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि कोष या खजाने से ही लोगों का कल्याण हो सकता है, आर्मी की व्यवस्था हो सकती है और सभी प्रकार के जितने कार्य होते हैं वो कोष के द्वारा ही पॉसिबल होते हैं। लेकिन इस संबंध में जो कर व्यवस्था है तो करों को बिल्कुल आनुपातिक रूप से लगाना चाहिए। और इसके अलावा आपातकाल के समय जितने धार्मिक प्लेसेस हैं, टेम्पल्स हैं, उनके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए।
जुडिशियल सिस्टम की हम लोग बात करें तो उन्होंने कानून के सोर्सेज स्रोत बताए हैं। 4 तरीके के स्रोत शुक्र ने यहाँ पे बताए हैं, दैट इज़ धर्मशास्त्र, परंपराएं या व्यवहार, और जो संप्रभु है, राजा है, उनके आदेश। उसके अलावा शुक्र ने अपनी बुक नीति सार में जो क्राइम्स एंड ऑफेंसेस है इनकी भी एक लंबी लिस्ट उन्होंने दी है। राजा न्याय कार्य प्राग विभाग, दैट इज़ लॉयर, अमात्य, ब्राह्मण और पुरोहित, इन सबके साथ में मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा शुक्र ने एक विचार सभा का भी वर्णन किया है जो कि वर्तमान समय की जूरी व्यवस्था के समान है। ये केवल स्पेसिफिक केसेस के लिए है, नॉट फॉर रेगुलर केसेस और हियरिंग्स। और इसके अलावा उन्होंने न्याय व्यवस्था को विकेंद्रीकृत किया है, ऊपर से लेकर पूरी नीचे तक न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरीके से विकेंद्रित है। आंतरिक प्रशासन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अलावा हमारे पास में फॉरेन रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, वैदेशिक नीति, वैदेशिक संबंध आ जाते हैं, या अंतर्राज्यीय रिलेशंस आ जाते हैं। तो वो उनके अलाइक उनके जो आइडियाज़ है इस संबंध में, विचार है, वो मनु कौटिल्य के समान है। तो इस संबंध में हमारे पास में चीज़ें आ जाती हैं, जो बातें आ जाती हैं, वो एक तो मंडल थ्योरी है जिसके अंतर्गत आपके पास में शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं, उदासीन मध्यम राज्य होते हैं, राजा होते हैं, और इसके अलावा एक विजिगीषु राजा होता है। मंडल सिद्धांत हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग मनु और कौटिल्य के सिद्धांत पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों का ही बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। इसके अलावा हम लोग जब इंटरस्टेट रिलेशंस की बात करते हैं तो हमारे पास में 4 उपाय आ जाते हैं। 4 उपाय मतलब 4 नीतियाँ जो कि प्रेफरेंस शुक्र ने यहाँ पर दी है। 1 बाय 1 हमें अपना लेनी चाहिए। पहला आ जाता है साम, दैट इज़ मीन्स समझाना, दाम, दैट इज़ गिफ्ट और ब्राइबरी, थर्ड वन इज़ भेद, दैट इज़ डिवीज़न, एंड फोर्थ वन इज़ दंड मतलब पनिशमेंट और वॉर। इसके अलावा हमारे पास में षाड्गुण्य नीति आ जाती है। षाड्गुण्य मतलब षट प्लस गुण्य मतलब 6 गुण या 6 दिशाओं की नीति। पहला आ जाता है संधि, दैट इज टीटी। विग्रह मतलब कॉन्फ्लिक्ट। विग्रह या कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जबकि आप युद्ध की तैयारी करें व अपने शत्रु पक्ष के लिए को डराने धमकाने के लिए कुछ इस तरीके का आप प्रयास करते हैं जिसमें शत्रु पक्ष को ये लगता है कि अब आप उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं, बट इन रियली यू डोंट अटैक। और यान आ जाता है। यान मतलब वास्तविक आक्रमण। यही विग्रह और यान में फ़र्क है। विग्रह मतलब युद्ध की तैयारी और यान मतलब वास्तविक युद्ध। आश्रय आ जाता है शेल्टर। आसन मतलब तटस्थता। और द्वैधी भाव आ जाता है टू फोल्ड पॉलिसी। 2 तरीके की इसमें नीतियाँ हम एक साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। फर्स्ट आ जाता है मित्रता और दूसरी आ जाती है शत्रुता की नीति एट अ टाइम। इसके अलावा इनकी सामाजिक व्यवस्था आ जाती है और इन्होंने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा नहीं की है, लेकिन फिर भी इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो काफ़ी कुछ मनु के समान है। राजा है या समाज है उसमें धर्म प्रचलित रहेगा और यह देखा जाएगा कि सभी व्यक्ति वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करें। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम हमारे यहाँ पे 4 माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और शुक्र की विशेष बात यह है कि उन्होंने 4 आश्रमों की व्यवस्था ब्राह्मण वर्ण के लिए की है। ब्राह्मण वर्ण के लिए वो 4 आश्रमों की व्यवस्था है, जबकि अन्य तीनों जो वर्ण या कास्ट हैं उनके लिए वानप्रस्थ तक की ही व्यवस्था है, उनके लिए संन्यास आश्रम की व्यवस्था शुक्र ने नहीं की है। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।